begin our session. Let's begin our session without further delay. And first of all, I want to introduce myself. That it's Ifra Khan, President at Sindh Educational Organization. And first of all, I want to say a thanks to all of you for joining us tonight. And before starting the session, I just want to give a short introduction of our organization. That SEO is an educational organization which advocates about counseling, and SEO always try its best to provide the plenty of opportunities to the students to build their careers and have a blissful and a successful future ahead. And Sin Educational Organization will always try to put its contribution in the educational field, and this is a very short introduction of our organization. And first of all, now I would introduce our guest speaker of tonight's session, Professor Kamran Akhtar Siddiqui, English lecturer at Sakhar IBA University. I'm very glad to receive you, sir, tonight, and I hope that this session would be a productive session for all the participants. That you all are joining this session. And now I would like to invite Professor Kamran Akhtar virtually to steal the limelight and start the session officially. So it's up to you, sir. You can start your session now. Okay, thank you. Thank you, Ifrak. I hope you all can hear me. Yeah, of course, sir. Yes, Yeah, of sir. course. Loud and Yes, clear. yes, sir. You are audible. Yeah, of Okay. course, sir. It's Okay. First of all, thanks to SEO and the president for giving me this introduction, and I would obviously like all of you to take some very good things from this session so that you can all improve the way we draft our resumes, and make most of this opportunity to land a maybe job interview or an internship or anything that is up to your benefit. So without wasting even a single minute, I would like to start. And can the host please allow me to share the slides on the screen? Thank you. So let's begin. I hope you can see the slides on the screen. yeah, of course. Okay. Yes, sir. Your Thank slides you. are visible. Okay, it would be great if we stay very focused, and I would like all the participants to use the chat box so that for any means of communication, if you have any questions, you can put your questions over there, or if you have any comments to make, that's the proper forum. And last but not the least, obviously, I'll try to keep this session interactive, so I would like your comments in the chat box. So let's begin then. First of all, welcome to all of you on this awareness session on writing a resume. Uh, let me ask you first of all, how are you feeling right now? What are your feelings at the beginning of this session? Can you describe in a word, in an adjective? Yes, participants. What adjective would describe your feeling right now? Okay, we can see Shehbaz is passionate about this thing. And what about others? Excited, very good, better, good, curious. Nice responses. Very good. Okay, so let's then start with these happy, good, and the thirst for learning you all have. Okay, now, so in the first thing I would like you to see on the screen is the goal of the session. Obviously, the general goal of the session is to make you aware of the process of writing a resume to some extent. But
More importantly, there are some things which I would like you to be very clear about by the end of this session. So some of them are like difference between a CV and a resume, types of resume, components of a resume, and what format would suit that. And there are some common tips which you should not forget at any cost. So this is the flow of the session. तो हम स्टार्ट करते हैं आसान अल्फाज में कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं और आसान ज़बान में बताऊं ताकि जितने लोग हम यहाँ पे मौजूद हैं जो इस सेशन के लिए आए हैं वो सारे इससे बेनिफिट जो है वो लें, फ़ायदा लें, बिकॉज आई कैन सी पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो ये डिफरेंस आप सबको पता होना बहुत ज़रूरी है कि सीवी और रेज्यूमे में फ़र्क क्या है. तो इसके हम तीन तरीके से जान सकते हैं फ़र्क जो है. फॉर द फर्स्ट पॉइंट इज पर्पस. सो सीवी जो है दैट इज यूज्ड बाय एकेडमिक्स इन फील्ड ऑफ स्टडी and resume is used for employers who hire for a variety of positions. So CV जो है वो more often academia में use होती है, academic purposes के लिए use होती है, और resume जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर में जब एम्प्लॉयर्स बंदों को हायर करने लगते हैं तो वो रेज्यूमेस वहाँ पे उनसे अपने जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज हैं उनसे वो डिमांड करते हैं. तो एक तो पर्पस उसका डिफरेंट है, एक एकेडमिक है, दूसरा मोर फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज है. इस पे भी आगे चल के बात करते हैं कि कुछ कॉन्टेक्स्ट में जो एम्प्लॉयर मांगता है आपसे उसे भी सीवी कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट एंड ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो. सो बट हम जब अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं जहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा मार्केट है फ्रीलांसिंग के लिए और जॉब रिमोट वर्क के लिए, वहाँ पे रेज्यूमेज यूज होती हैं. सो दैट्स व्हाई आवर फोकस इज ऑन helping you draft a resume for you. So the second difference that is between CV and a resume is the content. कि कंटेंट सीवी में क्या होता है, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि इट्स मोर एकेडमिक नेचर सॉर्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट. तो उसमें आपके कोई एकेडमिक हिस्ट्री हो गई, टीचिंग हो गई, पब्लिकेशंस हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा एकेडमिक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं. ऑन द अदर हैंड जो रेज्यूमे है दैट डेमोन्स्ट्रेट्स योर रेलेवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. और उसमें आप क्योंकि जॉब करने जा रहे हैं तो वहाँ पे एकेडेमिया में भी एकेडमिक्स होगी, लेकिन फोकस जो ज्यादा होगा वो होगा आपके स्किल्स पे, आपके एक्सपीरियंस पे. तो ये हो गया दूसरा फर्क. तीसरा जो फर्क है इन दोनों चीजों में वो है आपके लेंथ का. CV is a detailed document, it's a lengthy document, whereas a resume is 1 or 2 page long, that's it. Hardly वो दूसरे पेज 2 पेज की डॉक्यूमेंट होगा, बट एट मैक्सिमम जो आपसे एम्प्लॉयर्स मांगेंगे वो एक 1 पेज रेज्यूमे होगा. सो आपने जितना भी जिंदगी में काम किया है आपको वो समराइज करके एक पेज पे रेलेवेंट पोस्ट के लिए लाना होता है. ठीक है, तो ये की डिफरेंस है बिटवीन अ सीवी एंड अ रेज्यूमे. तो अगर हम आपसे कोई पूछे कि भाई रेज्यूमे क्या है, तो हम कह सकते हैं कि रेज्यूमे इज अ ब्रीफ समरी ऑफ qualifications, education, experiences relevant to the job you are applying for. And this definition is obviously produced and given by Stanford University. उनके जो documents हैं उनको आपको ये definition उनके पास मिलेगी. तो it's a brief summary कि आपने जितना काम किया है अपने career में, academics में, उसकी एक brief summary होगी relevant to the job you are applying for. तो वो सारी चीजें आप वहाँ पे नहीं देते. सेकंड चीज, आजकल का जो कॉम्पिटिटिव दौर है, टाइम है, उसमें हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का कहना है कि हायरिंग मैनेजर्स टेक लेस देन 10 seconds टू डिसाइड इफ यू आर क्वालिफाइड. सो यू कैन सी कि आपका कंपटीशन कितना टफ है और कितना हाई है कि आपको सिर्फ 10 सेकंड में एक पेज की बुनियाद पे जज कर लिया जाता है कि वेदर यू क्वालिफाई फॉर अ सर्टेन पोजीशन और नॉट. So that's why it's very important that you draft a document जो आपके स्किल्स को, आपके एक्सपीरियंस को और आपके जो रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है उसको इस तरीके से मार्केट करे कि वो 10 seconds में आपको इट शुड लैंड यू अ जॉब इंटरव्यू, एन इंटर्नशिप इंटरव्यू और एन इंटरव्यू फॉर स्कॉलरशिप और एनीथिंग. सो ये हो गया
ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ रेज्यूमे। अब रेज्यूमे के टाइप्स भी हैं, तो हम उस पर थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू देंगे। इसके तीन टाइप्स हैं। एक टाइप है क्रोनोलॉजिकल, दूसरा है फंक्शनल, एंड द थर्ड वन इज कंबाइंड विच इज लाइक अ ब्लेंड ऑफ बोथ। अब क्रोनोलॉजिकल जो हमें रेज्यूमे है वो वर्क एक्सपीरियंस फोकस होती है, जिसका मतलब ये है कि आप जितना काम कर रहे हैं, आपने वो कंसिस्टेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, दूसरे में किया, तीसरे में किया, तो आपके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है। अब वो आप जब उसके बेस पे जॉब लेने जाते हैं तो आप वो क्रोनोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ समरी होती है आपके पास, कि आप कंसिस्टेंटली अपने काम को और पोजीशंस जिस पे आपने काम किया है वो आप शो करते हैं। एंड द सेकंड इज फंक्शनल रेज्यूमे। अब फंक्शनल रेज्यूमे जो है इट्स स्किल फोकस्ड। अब ये उन बंदों के लिए ज्यादा कारआमद होती है कि जो जिनके कैरियर में, जिनके जॉब कैरियर में वर्क जो एक्सपीरियंस है उसमें कहीं ना कहीं गैप हो, तो फिर आपको ये फंक्शनल रेज्यूमेस जो हैं वो इफेक्टिव होते हैं, बिकॉज ये आपके स्किल्स को फोकस करती हैं कि आपने ओवर द इयर्स क्या क्या स्किल्स सीखे हैं। और थर्ड है कंबाइंड, जिसमें हम दोनों की एक झलक देते हैं। अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, जिस पे मैं कोशिश करूंगा कि एक ही स्लाइड पे आपको तीनों का एक छोटा सा ओवरव्यू मिल जाए। सो फर्स्ट है क्रोनोलॉजिकल। तो अगर आप देखें इसमें एक्सपीरियंस में बंदा क्या लिख रहा है, अपना डेजिग्नेशन लिख रहा है, एंड देन इट्स the person is writing the organization, कि उस बंदे ने किस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम किया। अब उसके बाद देखें तो आप उसमें फिर वो उस रोल में रहते हुए जो काम किए हैं वो उसने मेंशन किए हैं। ये है क्रोनोलॉजिकल। अब ये क्या है, वर्क एक्सपीरियंस फोकस, कि आपने किस पोजीशन पे और किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम किया। सेकंड देखें तो ये है फंक्शनल। अब फंक्शनल जो है दैट इज फोकस्ड ऑन स्किल्स। अब ये है रिसर्चिंग राइटिंग स्किल्स। अब रिसर्च स्किल्स और राइटिंग स्किल्स पे आपने जितना काम किया है वो आप वहां पे लिखेंगे। ओके, सो हम बात कर रहे थे फंक्शनल रेज्यूमे की। तो अगर फंक्शनल रेज्यूमे में देखें तो अब हमने रिसर्चिंग राइटिंग, अब ये स्किल्स पे हमने बात की कि मुझे रिसर्चिंग आती है, मुझे राइटिंग आती है, और उसके अलावा फिर हमने फिर नीचे उस स्किल से रिलेटेड जो काम किया है वो लिखा है। अब यहाँ पे आप देखें तो इस सीवी में, सॉरी इस रेज्यूमे में कहीं भी आपको डेजिग्नेशन नहीं मिल रहा, कहीं भी आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं मिल रहा। वो हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन करते हैं एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में, वो एक अलग सेक्शन होता है। लेकिन हम आप अब यहाँ देखें तो फोकस आपका स्किल पे है, फोकस आपका जॉब के पोजीशन पे नहीं है, जैसे कि क्रोनोलॉजिकल में है। कंबाइंड में अगर आप देखें तो पहले स्किल मेंशन्ड है, उसके बाद उस स्किल से रिलेटेड आपने किस पोजीशन पे काम किया है और कहाँ काम किया है, तो ये दोनों चीजें मर्ज्ड हैं। उसके बाद आपने जो रोल्स प्ले किए, उसमें जो काम किया है, एंड दैट ऑल इज मेंशन। So it's a brief overview of these three kinds: chronological, functional, and combined. If I move back to the previous slide, I'm sure you can see the types of a resume. So ये hyperlinked हैं when if you receive the slides. So आप chronological को click करेंगे और functional को click करेंगे तो ये it will take you to a sample of a chronological resume and a functional resume. So these are the three types. अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पे, कंपोनेंट्स ऑफ रेज्यूमे। अब कंपोनेंट्स वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो कॉमन है वो मैं सबसे पहले उन पे बात करूंगा, और उसके बाद थोड़े से जो ऑप्शनल आपके हेडिंग्स हैं उस पे बात करेंगे। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली योर नेम एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो व्हेन इट कम्स टू कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, रिमेंबर दैट योर पोस्टल एड्रेस, your email address, your phone number, your any other contact number, that all of these things come under this contact information, कि वो पोस्ट के थ्रू, ईमेल के थ्रू और फोन के थ्रू आपसे जो कांटेक्ट करें,
या मे बी समटाइम्स फैक्स नंबर और एनीथिंग एल्स, सो वो आपके कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आता है. The second is objective. Now, some kinds of resume, in some cultures, I should say rather, objective is written very explicitly on the top of the C or the resume. However, in certain contexts, in certain cultures, it is not written. So, अब उस पे अगर आपने लिखना है नहीं लिखना है, उसको आपने कल्चर वाइज देखना होगा कि कौन सी कंट्री क्या फेवर करती है. लेकिन कौन जो भी हो, अगर आपको लिखने का कहा जाए या ना लिखा जाए, तो हम ये देखेंगे कि लिखा जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं. सो नेम और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पे हमने बात की, और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पे मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूँगा आगे चल के. सो अगर आपको स्लाइड आगे नज़र नहीं मैं बढ़ाऊँ और नज़र नहीं आए तो प्लीज़ लेट मी नो. अच्छा जी, एजुकेशन, you all know very well, obviously education is important section in every resume, but the thing is you need to see very closely to what extent you need to mention your qualification, because in some context you are supposed to mention only the masters or the bachelors or the most recent degree. In other context, however, you need to mention all the way to the matriculation and the primary is very less common, but कहीं कहीं पे आपको हो सकता है कि वो मेंशन करना पड़े. सो द थिंग इज कि ये कल्चर पे भी डिपेंड करता है. अच्छा, एजुकेशन में ये बात याद रखनी है कि आपने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रखना है. रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मैं आपको एक एग्जांपल सैंपल भी शो करूंगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. चलें जी, एक्सपीरियंस सेक्शन. अब एक्सपीरियंस सेक्शन पे भी हम बड़ा इम्पोर्टेंट एक स्लाइड में शो करूंगा. आई होप कि आप सब उससे फायदा उठाएंगे कि हाउ टू मेंशन योर एक्सपीरियंस in a manner that it should be strong enough to make an appeal for you before the managers. The another section is skills and activities. Now skills and activities can be can be one section, can be divided into two. It is all up to you and the context you are applying for the job in. तो आपको देखना होता है, थोड़ा सा ये रिसर्च करनी होती है कि किस स्किल्स और कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं. उसके अलावा कुछ ये हेडिंग्स हैं, आप ये these are random headings which you can find in some and which you will not find in other types of resume. So they depend on the type of work that you have done in previously, और इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने एक्सपीरियंस किया है ये सारी चीज़ें या नहीं. सो मे बी एनी सर्टिफिकेशंस यू वांट टू हाईलाइट, एनी लीडरशिप रोल्स, एनी ऑनर्स एंड अवार्ड्स और अकम्पलिशमेंट्स. अब जो भी हेडिंग्स हम रखेंगे, ये बात सिर्फ जहन में रखिए कि आपका जो एक पेज का ये रेज्यूमे है, दैट्स अ मार्केटिंग डॉक्यूमेंट. ये आपको मार्केट कर रहा है, तो आपने वो चीज़ रखनी है कि जो आपकी आपको वहाँ पे बेहतर से बेहतर प्रूव करे. सो अब वो हेडिंग कोई भी हो सकती है, राइट. इनमें से भी हो सकती है, ऊपर वाली जो है ये तो मोस्ट कॉमन है, ये तो होंगी. नीचे जो हो सकती हैं, अदरवाइज आप उसमें से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंडस्ट्री दैट यू आर अप्लाइंग इन एंड द कल्चर. अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन कि ये जो हमारा अवार्ड एंड ऑनर एंड अकम्पलिशमेंट्स का सेक्शन है, इसमें क्या क्या हो सकता है. सो वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू एड्रेस है. देखें, अवार्ड्स आप लोग काम करते हैं, वॉलंटियर काम करते हैं, आप लोग जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो आप लोग बहुत सारे इंटर्नशिप्स करते हैं. उसके अलावा आप लोग कई सारे ये फॉर एग्जांपल सिंध एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन से एक ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हैं. सो वो आप लोगों की एफर्ट्स को अगर अप्रिशिएट करते हैं इन एनी मैनर फॉर योर लीडरशिप स्किल्स, for your for example any volunteer work, any write-up, anything, वो आपके ऑनर्स एंड अवार्ड्स में आते हैं. अकम्पलिशमेंट्स, इसको देखें तो ये मैंने और लिखा है, ठीक है, या अकम्पलिशमेंट. आप इसको अकम्पलिशमेंट की हेडिंग इस तरीके से भी दे सकते हैं, इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल कोई स्कॉलरशिप आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर स्टडी अवेल की. नाउ दैट्स योर अकम्पलिशमेंट, बिकॉज इफ यू गॉट एन स्कॉलरशिप ऑन मेरिट बेस्ड on merit basis, so this is your accomplishment which you should highlight. उसके अलावा अगर आपने कोई ऐसी जो फॉर एग्जांपल है अचीवमेंट की है, नॉट जस्ट प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी, जिससे
कि आपको आपके आपके अंदर एक स्किल्स डेवलप हुए हैं, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अकम्पलिशमेंट्स को ये बात जहन में रखें कि anything that is useful and can be helpful in your job that you are applying for should be mentioned, right? So इसमें स्कॉलरशिप आ गई, इसमें ये छोटे मोटे से जो एप्रिसिएशन आ गई, ये सारी चीजें यहाँ पे आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो आई होप आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि हम इसको किस तरीके से डील कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज दिस राइटिंग ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स। ओके, आई होप आप लोग अभी देख पा रहे हैं राइटिंग ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स की स्लाइड। Yes, sir. It's okay, sir. Right now. ओके, थैंक यू। नाउ अब ये इस पे जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने जैसे कहा कि ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स कुछ कल्चर्स में लिखे जाते हैं, कुछ कल्चर्स में नहीं लिखे जाते। ये रिसर्च करना पहले हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के कल्चर को थोड़ा सा स्टडी करें। अगर आपको लिखना पड़ जाए तो आप कैसे लिखेंगे? सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू one way of writing your objective statements, because objective statement should be a concise statement, लेकिन उसमें कुछ चीजें होना बहुत जरूरी है। So let's begin then. Now I hope you can read this statement. To serve as a salesperson with a firm that promotes the use of strong communication and interpersonal skills with a chance to become sales executive. Now अब इसमें देखें तो आपको मैं कुछ चीजें हाईलाइट करने लगा हूं जो यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। सो पहला वर्ड जो आपको हाईलाइटेड नजर आएगा दैट इज सेल्स पर्सन। तो पहले चीज आपको जो जहन में रखनी है और जो आपने ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में रखनी है वो है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब ये आपको कहाँ से मिलेगी? ये आपको मिलेगी जॉब एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है? तो सेल्स पर्सन। ओके, आगे आए विथ अ फर्म। अब होता ये है कि अगर आप एजुकेशनल इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिख दें, यूनिवर्सिटी लिख दें, स्कूल लिख दें। आप बिजनेस के उसमें रख रहे हैं तो आप कोई बिजनेस फर्म लिख दें, कोई और ऐसा टर्म यूज करें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरा जो ऑप्शन आपको ज़हन में रखना है कि आपको इंडस्ट्री रिलेटेड कोई टर्म यूज करना है। स्पेसिफिक आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिख सकते हैं, जनरली आप उस इंडस्ट्री को खाली मेंशन करें, दैट्स आल्सो इनफ। सो ये हो गई दो चीजें। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है आपका स्किल्स। तो यहाँ पे कौन सी स्किल्स हैं? कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो थर्ड थिंग इज कि आपको स्किल्स मेंशन करनी है। ये आपको कभी जॉब एडवर्टाइजमेंट से भी मिल सकती हैं, अदरवाइज आप अपने इस एक्सपीरियंस से भी समझ सकते हैं कि इस जॉब के लिए ये स्किल्स होना सेल्स पर्सन के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब चौथी चीज, तो ये जो तीन चीजें मैंने अभी बताई, मैं आई एम जस्ट रिपीटिंग देम कि आपको जॉब डेजिग्नेशन, ठीक है, इंडस्ट्री एंड द थर्ड थिंग स्किल्स, ये तीन चीजें होना लाजमी है। चौथी चीज जो है दैट इज योर कैरियर गोल। वो अगर आप रखें तो अच्छा है, ताकि आपको लोगों को पता चले, मैनेजर्स को पता चले कि द पर्सन इज रादर प्रोग्रेसिव इन हिज अप्रोच। लेकिन अगर नहीं तो कम से कम आप तीन चीजें लाजमी तौर पे रखें। और एक बात, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक किया गया कि क्या हमें ऑब्जेक्टिव जो है जहां भी अप्लाई करें उसको चेंज करना चाहिए या जनरल रखना चाहिए? आई वुड पर्सनली से रेज्यूमे इज अ टेलर्ड डॉक्यूमेंट। टेलर्ड डॉक्यूमेंट मींस कि आपको वो थोड़ा बहुत ट्वीक करना पड़ेगा। अगर आप माजरत के साथ में अगर ये पाकिस्तानी वो रखेंगे प्रोग्राम के बस एक रेज्यूमे बनाने और उसी को हर जगह चलाना है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। इफ यू वांट योर थिंग टू वर्क यू नीड टू मेक सम चेंजेस बहुत सारी नहीं होंगी, बट उसमें ट्वीक्स जरूर आपको करने चाहिए, अदरवाइज उसका फायदा नहीं होगा। सो दिस इज अबाउट ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स। लेट्स मूव to the next slide and
The next slide is writing about bullets. Writing bullet points, चलें ये आपको experience section में बहुत important काम आएंगे. अब use action verbs, quantify and demonstrate skills. इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको सिर्फ समझाना चाहूंगा. वैसे दो एग्जांपल्स हैं तो हम लेकिन सिर्फ चलें दोनों पे जल्दी से बात कर लेते हैं. फर्स्ट इज कि आपका जो एक्सपीरियंस सेक्शन है वो स्टार्ट हो एक एक्शन वर्ब से. अब इसमें देखें कौन से एक्शन वर्ब्स हैं. इंक्रीज्ड, दूसरे में है कोलाबोरेटेड. इट्स एन एक्शन वर्ड कि आपने काम किया किया किसी पर्टिकुलर रोल में. दूसरा कि क्वांटिफाई करें अपने रोल को कि कैसे किया. फॉर एग्जांपल इंक्रीज सेल्स, अगर आप लिखेंगे भाई मैंने सेल्स इंक्रीज की तो ये काफी नहीं होगा, बिकॉज एम्प्लॉयर जानना चाहेगा कि आपने किस हद तक आपने परफॉर्मेंस इंप्रूव की. सो इंक्रीज सेल्स बाय 20%. इसी तरीके से अगर आप नीचे वाले एग्जांपल में देखें तो राइट फॉर एग्जांपल कोलैबोरेटेड विद 2 फॉरेन कंटेंट राइटर्स टू प्रोड्यूस 10 वेल रिसर्च ब्लॉग पोस्ट. तो ये आपने क्वांटिफाई करना होता है. अच्छा, तीसरा डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स. अब आप ये पहले स्टेटमेंट में देखें, increase sales by 20% in 2 months by motivating sales team and negotiating with distributors. तो ये आपने मोटिवेशन की स्किल अपने अंदर दिखाई, नेगोशिएशन की दिखाई. और नीचे वाले एग्जांपल में देखें तो आपने गूगल डॉक्स का टर्म यूज किया है. बट अक्सर ये सोच है कि यार ये हम क्यों करें और इतनी छोटी सी चीज है. बट दिस शोज दैट यू नो हाउ टू वर्क विद गूगल डॉक्स. It's not a it's a technical skill. It shows that you know how to use technology. So ये इस तरीके से आपको बुलेट पॉइंट्स पे काम करना बहुत जरूरी है. चलें नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और इसमें हम चीजों को ये जहन में रखें कि आप टेम्पलेट्स को अवॉइड करें. व्हेन इट कम्स टू फॉर्मेट प्लीज अवॉइड टेम्पलेट्स, क्योंकि वो टेम्पलेट्स में हर चीज फिट होती है, आपको सिर्फ डेटा रखना होता है. तो ये जो पॉइंट है ना कि हम अगर टेलर कैसे करें फिर रेज्यूमे को, फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि फिर उसकी कहीं पे सेटिंग आउट हो जाएगी और आपने कोई डॉक्यूमेंट भेजा वहां जाके खुलेगा तो किसी और फॉर्मेट में होगा. सो प्रॉब्लम्स होंगे. सो कोशिश ये करें कि ऑलरेडी मेड टेम्पलेट्स को अवॉइड करें, ब्लैंक पेज पे काम करें, थोड़ा सा टाइम दें, इट विल बेनिफिट यू. नेक्स्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, हेडिंग्स, डेट. ये चीजें, चारों चीजें कंसिस्टेंट होनी चाहिए. कंसिस्टेंट से मुराद कि आपने फॉन्ट साइज 12 रखी है, होनी भी 10 to 12 चाहिए, तो वो 12 ही हो थ्रू आउट. फॉन्ट स्टाइल आपने रेज्यूमे के लिए सजेस्टेड है या कैलिब्री या टाइम्स न्यू रोमन, तो आपने वही स्टाइल रखना है थ्रू आउट. थर्ड, हेडिंग्स. हेडिंग्स अगर आपने बोल्ड रखी हैं तो वो फिर सारी हेडिंग्स बोल्ड होनी चाहिए. इन द सिमिलर फैशन अगर आपने कोई डेट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से लिखी है, डेट अगर किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट से लिखी है, तो ये भी आप ध्यान में रखें कि आपने उसी फॉर्मेट से डेट को आगे लेके चलना है, बिकॉज आपको डेट या ईयर्स कहीं पे मेंशन करने पड़ सकते हैं. Okay, let's resume our work then. We were talking about format और some of the points that I shared with you कि templates को कोशिश करके avoid करें. अपना एक document बनाएं blank sheet से, and that is going to benefit you more than the already set templates. Then I suggested to use font size 10 to 12, font style more often Times New Roman or Calibri, and headings. Keep all these three things, and then the fourth one, that consistent, which means कि आपने जो स्टाइल शुरू में यूज किया है उसी तरीके को फॉलो करें. सो अगर आपने हेडिंग्स ऑल कैप्स लगाई हैं, बोल्ड लगाई हैं, तो वो फिर थ्रू आउट सारी हेडिंग्स उससे लगाएं. इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक विजुअल अपील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीडर. इवन आई शुड नॉट से रीडर, बिकॉज आपकी रेज्यूमेज मोर ऑफन पढ़ी नहीं जाती, पीपल स्किम देम. वो सिर्फ एक झलक देखते हैं, ओवरव्यू लेते हैं, एंड देन दे मूव फॉरवर्ड. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस माइन्यूट थिंग्स. अब ये सारी चीजें कि कौन सी चीज हेडिंग रखनी है, नहीं रखनी, कौन सी डेट का स्टाइल क्या होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल मोर ऑफन क्या चल रहा है, एंड ऑल दीज थिंग्स. इसके लिए बहुत जरूरी है दैट यू रिसर्च द जॉब इंडस्ट्री एंड द कल्चर of the organization. If not the organizational culture, then the culture of the
country that you are applying in. For example कि अगर आप यूएस में अप्लाई कर रहे हैं तो उनका एक अपना तरीका है, यूरोपियन कंट्रीज का एक अपना तरीका है. सो ये थोड़ी सी रिसर्च आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी बिफोर फाइनलाइजिंग योर डॉक्यूमेंट. आगे बढ़ते सम कॉमन टिप्स. लास्ट पॉइंट्स हम कुछ डिस्कस करेंगे. यूज एक्शन लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ पैसिव वर्ड्स. तो जैसे मैंने कहा कि वो कौन से वर्ब्स हैं, कौन से एक्शन वर्ड्स हैं जिससे आप अपने काम को बता सकते हैं. सो डू नॉट यूज एनी पैसिव वर्ब, पैसिव स्ट्रक्चर, यूज एक्शन वर्ब्स. आप नेट पे सर्च करेंगे आपको एक्शन वर्ड से भरपूर एक लिस्ट मिलेगी. सो प्लीज उनको यूज करें for different roles that you perform in a particular organization and working in a particular role. Then check spelling and grammar errors. This is the most common thing that we have seen कि जब भी बच्चे एक रेज्यूमे बना के लाते हैं तो उसमें ये छोटे छोटे से prepositions और ये सारी चीज़ें जो हैं स्पेलिंग्स कुछ वर्ड्स की वो बड़ी गलतियां हमें नज़र आती हैं. तो प्लीज़ इसका ख्याल रखें कि वेदर यू यूज़ अ टूल या किसी से आप प्रूफ रीड करवाएं, लेकिन एक डॉक्यूमेंट को कहीं भेजने से पहले इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखें. The next thing, keep it short. Don't be so wordy about your things. Wordy by mean to say that कि उसमें बहुत सारी चीजें होना जरूरी नहीं है. Resume is a one page brief summary of what you are basically on paper. So check email and phone information. समटाइम्स हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये प्रॉब्लम है कि हमारे, और ये मैंने कॉन्टेक्चुअलाइज करके ये लिखा है कि मल्टीपल ईमेल्स होती हैं एक बंदे को और वो बहुत सारी ईमेल्स को यूज कर रहे होते हैं. सो प्लीज यूज दैट ईमेल विच यू फ्रीक्वेंटली यूज. वन थिंग. सेकंडली, फोन इंफॉर्मेशन हो और या आपके पोस्टल एड्रेसेस हों, वो डेट्स, वो सारी चीजें यूज करें जो फ्रीक्वेंट हैं. बंदा एक जगह से बिलोंग करता है, रहता कहीं और जगह पे है, उसको जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो उसकी पोस्टल एड्रेस पे कम्युनिकेशन है वो बड़ी मुश्किल से होती है फिर. And people have lost very good interview opportunities just because of receiving documents at different places and they could not the documents could not reach them on time. So इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है. And last but not the least, when the document is ready, please save the document as a PDF. What happens, एक स्टूडेंट ने मुझे रेज्यूमे भेजी, मैंने उसको डाउनलोड की, उसका कुछ वर्ड का और एक वर्जन था, यहाँ मेरे पास जब आई तो एक और वर्जन में वो ओपन हुई एंड इट वाज लाइक हैपहैज़र्ड डॉक्यूमेंट. उसके पास उसके लैपटॉप में इट वाज ऑल फाइन. सो द प्रॉब्लम इज कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट्स का जो वर्जन्स का प्रॉब्लम है, ये भी छोटा सा माइनर सा इशू आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सो बी वेरी केयरफुल, टर्न इट इनटू अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट एंड अ पीडीएफ विल बी पीडीएफ व्हाटएवर the version of the things are. पीडीएफ आपको काफी परेशानियों से बचा सकता है. तो एक क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्टिव में कितने वर्ड्स होने चाहिए. आई वुड से कि वर्ड लिमिट नहीं है, आपको सिर्फ 3 चीजें देखनी है कि आप ये देखें कि आपके पास स्किल्स उसमें मेंशन है, 1-2 स्किल्स मेंशन है, आप जॉब डेजिग्नेशन को मेंशन कर रहे हैं और आप उसके साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हिंट कर रहे हैं या इंडस्ट्री की तरफ हिंट कर रहे हैं. बट इट शुड नॉट बी टू लेंथी. इट शुड बी हार्डली it should be at length one sentence, and one sentence only. That's it. चलें आगे बढ़ते हैं. लास्ट थिंग ऑफ ऑल, ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट रेज्यूमे के लिए अगर आप को चाहिए तो ये आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में मिल जाएंगे. हार्वर्ड स्टाइल रेज्यूमे, इस पे इन दोनों चीज़ों पे मेरे लेक्चर्स प्रिपेयर्ड हैं कि स्पेसिफिकली, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है और बाकी चीज़ों का ध्यान कैसे रखना है, लेकिन एक सेशन इस सबके लिए काफ़ी नहीं है. सो अगर आपको फ्रेश ग्रेजुएट रेज्यूमे बनानी है और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चाहिए, सो इट्स अ 8 मिनट लेक्चर और 8 मिनट लेक्चर में वो सारी चीज़ें आपकी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी. If you are interested in more of like Harvard style resume, so उस पे भी एक पूरा लेक्चर रेडी है. in 15 minutes in 15 minutes actually you can get to know all the things. So the idea is कि ये फ्रेश ग्रेजुएट पर रेज्यूमे और हार्वर्ड स्टाइल रेज्यूमे, ये दोनों आपको लिंक्स शेयर कर दी जाएंगी तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं.
And if you know, if you want to know more about me, like it's my website kamranakhtarsiddiqui.com. So उस पे बहुत सारे resources आपके लिए और भी मौजूद हैं, वहाँ से आप फायदा उठा सकते हैं. यहाँ पे मैं अपना सेशन एंड करूँगा बिकॉज दैट वाज एन अवेयरनेस सेशन. सो फर्दर डिटेल्स हम किसी और दिन बात कर सकते हैं. आई होप कि आपको आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी. सो इफ़ यू really learned a thing, I would like you to mention that in the chat box कि आज आपने इस एक कौन सी खास चीज इस सेशन से सीखी. That would be a kind comment from you कि आप लोगों की आज लर्निंग किस तरीके से हुई. Further, the floor is open for questions. सर आप बात कर रहे थे कि फ्रेश ग्रेजुएट की में एक लेक्चर लिया था, वो आपका कब ले सकते हैं? देखें, फ्रेश ग्रेजुएट रेज्यूमी जो है वो लिंक अनफॉर्चुनेटली आपको एक थोड़ी सी देर वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कंट्री के हालात कैसे हैं. तो वो मैं लिंक्स जो हैं वो दोस्तों के साथ इनके साथ शेयर नहीं कर पाया हूँ बिकॉज यूट्यूब इज नॉट वर्किंग. सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है. You will get the links as soon as possible after the session इंशाल्लाह. वो दोनों लेक्चर्स की आपको मिल जाएंगी, फ्रेश ग्रेजुएट्स की भी, हार्वर्ड रेज्यूमे की भी. अच्छा, अब क्योंकि आपने सवाल पूछा है, सो आई विल टेक अ मिनट टू शेयर अ डॉक्यूमेंट विथ यू इफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस सेशन अलो मी. कि यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट्स आपसे क्विकली शेयर करूंगा. ये कैन यू सी दिस दिस रेज्यूमे ऑन द स्क्रीन? यस सर. ठीक है. अब ये हमारे एक स्टूडेंट हैं माशाल्लाह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, उनको मैंने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था और उन्होंने ये हार्वर्ड स्टाइल पे एक रेज्यूमे बनाई थी. तो आप देखें कि एजुकेशन का सेक्शन उन्होंने लिखा है, उसके बाद एक्सपीरियंस का सेक्शन है और फिर प्रोजेक्ट्स हैं और सर्टिफिकेट्स हैं एंड देन देयर आर स्किल्स एंड इंटरेस्ट. अब इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि अल्दो इसमें कुछ चेंजेस, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. एज अ टीचर आई कैन सी इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन even then this resume has helped this student secure a position for I should not secure a position, I should say rather कि land a scholarship interview in Italy. सो उसने जब ये रेज्यूमी वहां भेजी तो उसको जो है उनके रेज्यूमी के बेसिस पे उनको कॉल किया गया है. सो कहना का मकसद ये है कि आप जब एफर्ट पुट करते हैं तो आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा. सो ये एक छोटी सी चीज है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. मैं इसका पूरा लेक्चर अली के साथ शेयर कर दूंगा एंड ही विल श्योरली शेयर बोथ लेक्चर्स विद यू. सो आप उसे बिल्कुल फायदा उठाएं विदाउट एनी ट्रबल. Unfortunately, I cannot hear you. So can I request the people out there, if you have any question, so you can please type the question because voice. I guess there were some technical issues, so all participants are requested that you can drop your any question and inquiry in the chat box that our guest speaker conveniently entertain your question and queries there. Thank you, Madam Afsa, and thank you all the participants. I think sir internet is not working, so we will have further discussion on SEO online session group, and if you have any queries, you are all welcome there. Thank you for joining.